So, hi everyone, myself Orkajoti Day, and today again, welcome to another late night talk where we used to share our thoughts, our perspectives, everything. कि घर बनाया है मन ने कुछ कमरे उसमें सोने ने कि कमरा है मेहमान. So I was recently studying about Ghalib, the great shair, the great poet. um, of 18th century. And what I what I learnt from his life was, अगर जीवन जीना है तो गालिब के जैसे जियो. Like, he was a too chill man. He was a chill guy. Like, अभी जो मीम चल रहा है ना, chill guy, that is Ghalib back then. He was a completely non-serious person, and we all know the depth of his writing skills. Beautiful, magnificent. It touches our heart. And he was so famous because he used to write in simple language that can be understood by the common people. उर्दू में लिख रहा है तो ऐसा नहीं कि कुछ मतलब बहुत कठिन शब्द का प्रयोग कर लिया. He used to write for common people and use simple language. Like, what is the sole purpose of communication? कम्युनिकेशन करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत भारी भरकम शब्द फेंक के मार दूँ जिससे मैं बात कर रहा हूँ और वो मुझे इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल, इंटेलिजेंट समझे, पर मैं उसे कुछ समझा ना पाऊँ. दैट इज़ नॉट द केस. Einstein used to say, if you can't explain it simply, you haven't understood it well. जो जितना सरल, जो जितना आसान भाषा में तुमसे बात करेगा, वो उतना ही उस विषय के गहराई में उतर चुका है. जो भारी भरकम शब्द का प्रयोग करेगा, उसका मतलब that guy is superficial in that topic or in that subject. So that is very much important कि the person you are talking with, he or she or them or they, और अगर कुछ पेड़ से बात कर रहे हो तो इट बातें करा, बातें क्या करो, जिस जो भी मिले बातें क्या करो. The poets, the writers used to talk with the sky, used to talk with the trees, and you think they can't answer. तुम्हें लगता है कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन नहीं, that is not the case. They can answer as well. अगर यूनिवर्स से कुछ पूछोगे तो जवाब मिल जाएगा, शायद किसी दूसरे प्रकार से मिलेगा. ऐसा नहीं कि एक आदमी जैसे बात करता है वैसा मिलेगा, बट मिलेगा तो ज़रूर. कभी बैठा करो किसी पेड़ के छाँव में, छत में जाके बैठ जाया करो और देखा करो आसमान को, कितना खूबसूरत है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट गालिब. गालिब यूज टू, व्हाट आई कैन से, यूज टू ड्रिंक वेरी मच. बहुत शराब पीता था बंदा, बहुत ही शराब पीता था. आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट promoting that drinking alcohol is good, right? But I am just talking about Ghalib. He used to drink a lot. And one time what happened was,
Ghalib used to. The thing happened. Ghalib got a job as a professor in a university, and he rented a horse cart to like. तब तो ये गाड़ी वाड़ी नहीं होता था, तंगा ही होता था. द हॉर्स कार्ट, और चैरियट तो नहीं बोल सकते उसको, हॉर्स कार्ट ही सही है. तो हॉर्स ड्रिवन कार्ट, तो उसमें बैठ के like Ghalib went to his university in his first day. So what happened was, अच्छा, the charge is not charging is not on. So what happened was, uh, as soon as Ghalib arrived the university in his tanga, in his cart, he saw that the principal of the university didn't came at the gate to receive him. And by this gesture, Ghalib was upset. And then, in a moment, in the same cart, he went back home. Like जॉब छोड़ दिया उसने, क्योंकि कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जैसे जैसे कि तुम एक जॉब करने जाओ, कि जॉब, उस जॉब में जो बॉस है या मालिक है वो तुम्हें लेने नहीं आया गेट में, जॉब छोड़ दिया बंदे ने. एंड दैट इज़ नॉट द थिंग दैट Ghalib वॉज वेरी रिच, ही हैव अ लॉट ऑफ लग्जरीज. ऐसा नहीं है इसलिए जॉब छोड़ दिया क्योंकि बैकअप है, बैकअप नहीं है तो भी जॉब छोड़ दिया. ये होता है. लाइक आजकल ओड़ा बोलते हैं, और क्या बोले, लाइक दैट इज़ लाइफ, आई गेस. ऐसे ही जिया जाता होगा जीवन, और कैसे जिया जाता होगा, एक नौकरी करके, 2 बच्चे करके मर जाएंगे एक दिन. दैट इज़ नॉट लाइफ, दिस इज़ लाइफ, आई गेस. So then what happened was, and like Ghalib, as he was not so rich, what he used to do is, for like he used to ask for money from his friends to drink alcohol. Like he don't have the amount or the money to drink alcohol, but still he wants to drink. So he used to borrow from others, borrow from his friends, and in a while his friends become frustrated with him because they have given a lot of money. Then he used to make more friends, नए लोगों से मांगता था, और ऐसे ही चलता था उसका जीवन. और क्या लिखता था बंदा, how beautiful he used to write. That is the thing, that is the story of Ghalib. Next, I guess, there is a famous speech. There is another thing I want to share, and that is about Lord Ganesh. अभी गणेश चतुर्थी चला गया 2 दिन पहले, तो मैं सुन रहा था एक इंस्टाग्राम पे ही रील पे, वो जो लल्लन टॉप का जो मालिक है शायद, उसका ही स्पीच सुन रहा था कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम लॉर्ड गणेश. वी कैन लर्न फ्रॉम लॉर्ड गणेशा हाउ टू बी पीसफुल एंड रिलैक्स्ड इन योर लाइफ. अगर तुम 1-2 फोटो देखोगे गणेश का, तो ही वॉज इन अ रिलैक्स्ड काम मूड,
used to like in a bed, like ऐसे करके माथे पे हाथ रख के ऐसे आराम कर रहा होगा, या फिर आराम से बैठा होगा अपने, क्या बोलूँ, वो चूहे के बगल में. एंड this is a part of life, to be relaxed, to be calm. एंड लोग तरस जाते हैं इसके लिए. सब कुछ है शायद, पर जीवन में पीस नहीं है. एंड द अल्टीमेट दिस इज, so you need to learn it from Lord Ganesha, how to be peaceful up to. The second thing is, जी भर के खाओ. खाओ मतलब सिर्फ खाना नहीं होता. नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को भी खाना बोलते हैं. Like how you feed yourself with knowledge. He is a great scholar, right? Lord Ganesha was a great scholar. Um, he was very good in Veds. He was very good in other scriptures, and he used to enjoy his food as well. You have got one life. Enjoy everything in a wholesome, in a holistic way. ऐसा नहीं कि मैं करियर में फोकस हूँ तो फैमिली लाइफ कुछ है ही नहीं मेरे लिए. नहीं, फैमिली भी होना चाहिए, करियर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. इंजॉय करना सीखो. लास्ट में यही है, क्या है जीवन में, एक दिन मर जाएगा. सो दिस इज द थिंग. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जीवन में और कुछ काम करो या ना करो, हमेशा अपने माता पिता का सेवा करो. You must have seen how respectful, how devoted Ganesh was towards his parents. कितना प्यार करते थे वो लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती को. वैसा होना चाहिए. तुम्हारे पास जॉब अच्छी नहीं हो सकता, जॉब शायद कुछ अच्छा ना हो, या फिर लाइफ में शायद कुछ अच्छा ना चल रहा हो, कुछ भी शायद ठीक ना चल रहा हो, पर अपने माता पिता का सेवा हर वक्त करना चाहिए. अगर शायद तुम नौकरी भी करते हो बहुत, मेरे लिए जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है. अगर एक बंदा अमेरिका में अकेले रहता है, बहुत अच्छा जॉब करता है, like he earns in crores, but he used to live alone, and his parents live in India. His parents just want to see a single glance of the child. सोचते हैं एक बार मिल जाता तो अच्छा होता. सोचते हैं एक बार दिख जाता तो अच्छा होता. तो दैट इज़ नॉट सक्सेस फॉर मी. On the other hand, if a guy earns 10,000 rupees per month but lives with his parents, eats with his parents at the night, at the lunch, talk with his parents, कुछ बातें कर लिया अपने माँ बाप से, रात में मिल लिया, या फिर अगर थोड़ा दूर भी हो फ़ोन में बातें कर लिया, या फिर मतलब एफर्ट मारे कि पास ही हो एकदम, या फिर जहाँ जा रहे हो अपने माँ बाप को लेके जाए, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी. शायद वो बंदा 10,000 कमा रहा है, शायद सोसाइटी के नज़रिए से वो फेलियर है, पर मेरे लिए वो सक्सेसफुल है.
शायद नेक्स्ट शायद कृष्णा मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति का एक स्पीच है, ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। वो मुझे याद नहीं, वो मुझे सर्च करना पड़ेगा। हाँ, ट्रूथ इज़ अ pathless land speech, yeah, truth is a pathless land, मिल गया शायद। Yeah, J. Krishnamurti was forcefully associated with the Theosophical Society, but later he left the society to live his life, to give us the essence of life. In philosophy, J. Krishnamurti is a great name, like Osho, like other philosophical persons. And this is his speech. Truth is a pathless land. Truth being limitless, unconditional, unapproachable by any path whatsoever, cannot be organized, nor should any organization be formed to lead or to coerce people along any particular path. इसका मतलब, अगर तुम सत्य के खोज में निकल चुके हो या फिर निकलने जा रहे हो, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटी, कोई रिलीजियन, कोई क्या कहूँ, कोई कम्युनिटी तुम्हें उस तक नहीं पहुंचा सकता। बिकॉज ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड, देर इज़ नो पर्टिकुलर पाथ। वो जो जर्नी है, वो जो खुशी मिलेगा, इट इज़ लिमिटलेस, लिमिटेड नहीं है ट्रूथ, अनकंडीशनड, अनअप्रोचेबल बाय एनी पाथ। किसी पाथ से अप्रोच किया ही नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। मैन कैन नॉट, ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड, मैन कैन नॉट कम टू इट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एनी क्रीड, थ्रू एनी डॉगमा, प्रीस्ट और रिचुअल। कोई रिचुअल परफॉर्म कर लो, होम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई प्रीस्ट, कोई पंडित, कोई फादर तुम्हें नहीं ले जा सकता सत्य की ओर। नॉट एनी फिलोसॉफिकल नॉलेज और फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल टेक्निक हैक, टेक्निक भी नहीं ले जा सकता। ही हैज़ टू फाइंड इट थ्रू द मिरर ऑफ रिलेशनशिप, थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ हिज ओन माइंड, थ्रू ऑब्जर्वेशन, and not through intellectual analysis or introspective dissection. Intellectual analysis, इसका मतलब सत्य के खोज में तुम्हें लॉजिकल माइंड हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि प्यार में लॉजिक नहीं होता, इमोशंस होता है। Like if you are falling in love, you should keep aside the logic. और एक बात है कि अगर किसी लड़का किसी लड़की के या फिर किसी लड़की किसी लड़का के प्यार में पड़ जाए, तो they say that he or she is so beautiful, he or she is so beautiful. इसका मतलब ये नहीं कि वो खूबसूरत है इसलिए तुम प्यार में पड़ गए। इसका मतलब ये है
कि तुम प्यार में हो, इसलिए तुम्हें वो खूबसूरत दिखाई पड़ रही है. Your perspective changes, your views changes when you're in love. जैसे कि लैला और मजनू के केस में लैला को एक राजा ने बोला मजनू को एक राजा ने बोला कि लैला ही क्यों. राजा ने 10 खूबसूरत लड़कियों को बुलाया उस एरिया का. 10 द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यू कैन एवर इमेजिन, लाइक दे आर लाइक एंजल्स. और मजनू को बोला इनमें से जो भी पसंद आए उससे शादी कर लो. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, मजनू सेज इनमें से लैला तो कोई नहीं है. द किंग सेड लैला, they are the most beautiful girls in this area, like they are like straightly, like directly came from heaven, they directly came from heaven, like that is their astonishing beauty. But मजनू says इनमें से कोई मुझे खूबसूरत दिखाई नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति खूबसूरत दिखाई पड़ती है और वो है लैला. सो दैट इज़ द केस. एंड लव इज़ अ वे टू reach towards the truth. There are many other ways. Love is one of the way. And this is the most beautiful thing, I think, in life. Love is the most beautiful thing in life. Love is not the thing, the simple superficial attractions or the hookups. These are not love. And for love there is a great 4 to 5 lines song, and it can describe love beautifully. कि ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार का हो बंधन. I need to get the lyrics. ना उम्र की सीमा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन. What is it explaining? When you're in love, there should be no restriction of age. Why is it so? And there should be no restriction, there should be no limit of the cycle of birth and death. ना जन्मों का हो बंधन, ये जो जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है, इसका भी कोई प्रभाव प्यार में नहीं पड़ेगा. जैसे कि मीरा कृष्ण से प्यार किए थे. कृष्ण at that moment Krishna was not living as a person, but still Meera used to love him. How is it possible? This is like ऐसे ये हो सकता है कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन. तो देखे केवल मन. If you are loving someone, you should love.
देयर सोल, नॉट देयर बॉडी. बॉडी तो 2 दिनों में मुरझा जाएगा. ये जो स्किन है, द स्किन विल गेट wrinkled up, द फेस will start aging, and as you will approach death, your external beauty will disappear slowly. But when you love someone, love their soul. When you love their soul, that is pure love, that is true love. Because मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं. आत्मा तो जैसे कि कपड़े बदलते हैं लोग, वैसे आत्मा देह बदलता है. सो इफ यू आर लविंग समवन, if you are loving their soul, you are creating a timeless bond. जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो. कि नई रीत चलाकर तुम, ये रीत चलाकर, ये रीत तुम अमर कर दो, ताकि जो आने वाला जनरेशन है या फिर जो लोग भी प्यार करे ऐसे ही प्यार करे. दिस इज़ द राइट वे टू लव. आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन. इश्क बावला अभी एक चल रहा है गाना, कोक स्टूडियो. इश्क बावला, कोक स्टूडियो भारत. बट दिस इज इन हिंदी, राइट? मुझे हिंदी उतना अच्छे से नहीं पढ़ना आता है. टू गेट द इंग्लिश लिरिक्स. या दिस इंग्लिश. के किनारे है बैठे, सोचा जाऊं बेबेरी मैं, उसकी गली ना जानी ठीक था. ऐसा लगा रोग मुझे, आता कहीं ना के घेरे ठीक था. रंग भी उड़ लिया तेरी से. या आई लव दिस लाइन्स. एक घर बनाया है मन ने, कुछ कमरे उसमें सोने ने. एक कमरा है मेहमाना का, एक कमरा रखा है रोने ने. कि एक घर बनाया है मन ने, आई हैव बिल्ड अ हाउस. कुछ कमरे है सोने के. Some rooms are allocated for sleeps, like there these rooms are used to sleep. एक कमरा है मेहमाना का. One room was allocated for the guest who will come in my house. एक कमरा रखा है रोने ने. And one room specially is allocated to cry. How beautiful is it? I have made a house, and except everything that is necessary, I have allocated one room to cry. एक कमरा है मेहमाना का, एक कमरा रखा है रोने ने. ताबर तोड़ पड़े आंसू, तेजाब की दरिया फर्श जला. How I used to cry, how the
water used to, the tears used to flow from my eyes. रे ताबर तोर परे आंसू, ताबर तोर आंसू पड़े, तेजाब की तरह फर्श जला। जैसे कि एसिड अगर हम फ्लोर में फेंक दे तो जैसे एसिड जला देता है ना सब कुछ, लाइक दैट तेजाब की तरह फर्श जला। कोई माली भी नहीं मिलना रे, जब यो हुस्न का गुलाब जला। कोई माली भी नहीं मिलना रे, जब हुस्न का ये ओ गुलाब जला। When your external beauty will disappear, will fade away, then for the garden of your beauty, for the garden, like for the rose of your beauty, you will not find a gardener. कोई माली नहीं मिलेगा। मेरे वह बसी का आलम है। और एक मुझे लगता है उसका गाना है, वो गाना है किंग, किंग का उसूल, ये मुझे बहुत पसंद है। उसूल लिरिक्स, राइट, किंग उसूल लिरिक्स, या माली भीना मिलना रे। मैं मेरा बाप मेरी बाप की नकल नहीं, सिखाना उसने खुल के जी तू घुट के मर नहीं, बताया उसने खुल के लड़ किसी से डर नहीं, जो है ये आज तेरा होगा ऐसा कल नहीं। कि मैं मेरा बाप मेरी बाप की नकल नहीं, मैं मेरा बाप की नकल नहीं, मैं रूबरू मेरे बाप, मेरा बाप ही हूँ। सिखाया उसने खुल के जी तू घुट के मर नहीं। कि हम लोग घुट घुट के मरते हैं रोज़, खुल के नहीं जीते। कोई क्या बोल देगा, कोई किसी को क्या बुरा लग जाएगा, सम पीपल मे कॉल अस वियर्ड, फॉर दैट रीज़न हम खुल के नहीं जीते। सिखाया, पर मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि खुल के जी तू घुट के मर नहीं। सिखाया उसने खुल के जी तू घुट के मर नहीं, बताया उसने खुल के लड़ किसी से डर नहीं। इन दिस बैटलफील्ड ऑफ लाइफ openly fight with anyone, don't be afraid of anyone in this world। तो खुल के लड़, किसी से डर नहीं। कि ये जो लाइन है, सिखाया उसने खुल के जी तो घुट के मर नहीं, देयर इज़ अ ग्रेट शायरी फॉर दिस लाइन। कि खुदा उम्र भर अगर इन ख्याली भूतों से मैं ना डरता, कि उम्र भर अगर इन ख्याली भूतों से मैं ना डरता, तो खुदा मैं क्या ज़ोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। कि बताया उसने खुल के लड़ किसी से डर नहीं, जो है ये आज तेरा होगा ऐसा कल नहीं। आज जो तेरा है ऐसा कल तेरा नहीं होगा। टुमारो will be a change for you। This line gives us a great lesson that this time will pass, this will pass too। हर वक्त अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो ये भी चला जाएगा, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा चल रहा है तो ये भी चला जाएगा। सब कुछ समय का खेल है, आने वाला कल क्या होगा हमें पता नहीं। तो आज का जो प्रॉब्लम है उससे मत डर के खुल के जियो। उसूल जुबा पे रख घमंड काम आएगा, उसूल जुबा पे रख। कि द इंटीग्रिटी, द एथिक्स, द मॉरल्स, कीप इट इनसाइड यू। उसूल जुबा पे रख घमंड काम आएगा, आदाब और शाफ रख करम ये साथ जाएगा। न कभी पालियो भरम तो पैसा खाएगा, नेवर थिंक ऑफ दैट। कभी ये भ्रम भी मत पालियो कि यू विल बी अ करप्टेड मैन, यू विल टेक ब्राइब।
न कभी पालियो भरम तू पैसा खाएगा, इज्जत कमा तू किंग नाम से कहलाएगा, उसूल जुबा पे रख घमंडी काम आएगा, अदा बशा फरक करम ये साथ जाएगा। न कभी पालियो भरम तू पैसा खाएगा, इज्जत कमा तू किंग नाम से कहलाएगा। कि मेरे पास बेटा ज़्यादा नहीं है देने को, ये तेरे बाप तुझको एक ही बात सिखाएगा। न छोटा होता कोई इंसान बड़ा है सोच से, तू मेरा शेर है ना बेड़ियों में आएगा। कि लिसन माई सन, आई डोंट हैव टू मच प्रॉपर्टी और टू मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू गिव यू, बट आई एम गोइंग टू गिव यू वन एडवाइस। एक ही बात सिखाऊंगा, ना छोटा होता कोई इंसान बड़ा है सोच से। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इन्फीरियर और सुपीरियर। छोटा कोई नहीं होता। इंसान सोच से बड़ा होता है, माइंडसेट से बड़ा होता है। सारा खेल इस माइंडसेट से है। जैसे कि शकुनी मामा जो महाभारत के थे, उनका एक डायलॉग है कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में युद्ध जीता जाता है। कि एवरीथिंग इज अ थिंग ऑफ माइंडसेट। एवरीथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड टू टाइम्स। द फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, फर्स्ट टाइम इन योर ब्रेन, एंड द सेकेंड टाइम इन रियलिटी। कि मेरे पास बेटा ज़्यादा नहीं है देने को, ये तेरा बाप तुझको एक ही बात सिखाएगा। न छोटा होता कोई इंसान बड़ा है सोच से, तू मेरा शेर है ना बेड़ियों में आएगा। नफरत ज़माना लेके बोझ तुझ पे डाले जो, तू ये दीवार एक कलम से ही गिराएगा। कलाकार बेटा बनते नहीं लकीरों से, कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा। कि नफरत ज़माना लेके बोझ तुझ पे डाले जो, द सोसाइटियल प्रेशर, everything, the responsibilities that the society pressurize upon you, तो ये सब छोड़ दे। द बैरियर, आज जो तुझे ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये जो दीवार तेरे सामने है, तू ये दीवार एक कलम से ही गिराएगा। कलाकार बेटा बनते नहीं लकीरों से। ये जो एस्ट्रोलॉजी, ये सब, इससे कलाकार नहीं बनते। हाथ में लिखा है इसलिए मिल गया। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी इसलिए मिल गया, ये सब नहीं है। कलाकार बेटा बनते नहीं लकीरों से, कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा। कीप योर हैंड इन दैट आर्ट, कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दैट आर्ट, तो खुद ही बनता जाएगा। तो खुद ही अपने आप बनता जाएगा। दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। योर सक्सेस विल बी अ बाय प्रोडक्ट। तो कला पे हाथ रख बस, बाकी सब छोड़ दे। कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा। ये तेरी सोच, इस पे मुझको कोई शक नहीं है। मैं तेरा सपना छीनूं मुझको कोई हक नहीं है। ये तेरी ज़िंदगी तो खुद से ही बना रहा, तू अपने दम पे है यहाँ खरा, कोई लक नहीं है। आई गेस 38 मिनट्स हो गए। इट्स फाइन।